Hello everyone, very good morning. I am Dr. Madhulika Roy, Head Department of Zoology, Government DT PG College, Uttar. I have brought the topic reproductive behavior in animals. It is there in MSc first semester, paper 2, and in BSc second year, paper 2. So, this topic is very vast, very interesting, and uh, there are several new terms which you have to learn in due course of your study. So, let's begin. Okay. What is reproductive behavior? I want to say you that each and every single living being has inherent tendency to propagate its progeny in the nature, and that too it must be fertile and viable. Nature wants it, and nature has given this immense power to reproduce. ये नेचर ने ही ये व्यवस्था की है कि उसके प्रत्येक जीव में ये क्षमता हो कि उसकी प्रोजेनी, उसके ऑफस्प्रिंग्स नेचर में बरकरार रहें और वे स्वस्थ हों, फर्टाइल हों और बहुत ही अच्छी प्रजाति नेचर में बढ़ती रहे. May it be unicellular like Paramecium, Euglena, etc., or may it be multicellular. All the living beings, organisms, have this uh, tendency to reproduce and to produce their offsprings. This may be brought about either asexually or sexually. रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया असेक्सुअल भी हो सकती है और सेक्सुअल भी हो सकती है. इनवर्टिब्रेट्स में आपने देखा राइट फ्रॉम प्रोटोजोआ टू Nemathelminthes, you have seen asexual, not Nemathelminthes, till Coelenterata, you have seen asexual reproductions also. But from Platyhelminthes, you are observing sexual reproduction. Sexual reproduction is the exchange of genetic material between male and female. There is transmission of genes from one generation to the next through this exchange of genetic material. So, amoeba is a unicellular protozoan. It reproduces either by binary fission or by conjugation. But their progeny propagates, they perpetuate in the nature. Sexual reproduction occurs in organisms to exchange their genetic material, as I just told you, to produce more viable offspring. Animal sexual behavior, it was believed that sexuality in animals is instinctive and a simple stimulus response behavior. In animal behavior, the uh, branch of zoology, animal behavior, which is known as ethology, is full of such terms. हैं तो बहुत आसान ये टर्म्स, बस इन्हें समझने भर की देर है. तो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर मतलब जो अपने आप होता हो, स्पॉन्टेनियस होता हो, इसको सीखने सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, नैसर्गिक बिहेवियर है ये. और स्टिमुलस रिस्पॉन्स मतलब यदि इसे कोई उद्दीपन मिलता है तो उसकी वो प्रतिक्रिया दे रहा है. तो एनिमल किंगडम में आपको इस प्रकार के कई टर्म्स मिलेंगे एंड दिस इज इथोलॉजी. Animal behavior is ethology. Ethology is a study of animal behavior and it is species specific. This stimulus bound behavior is always species specific. आपको समय के साथ समझ में आएगा इसका क्या मतलब है. It takes many forms within the same species. Sexual behavior में क्या है? ये केवल मेट सिलेक्शन और मेटिंग ही नहीं है, बल्कि मेटिंग के पहले कोर्टशिप, कोर्टशिप के बाद मेटिंग, मेटिंग के बाद रिप्रोडक्शन, चाइल्ड बर्थ और चाइल्ड बर्थ के बाद आप
एनिमल किंगडम में पेरेंटल केयर की भावना देखते हैं, चाहे वो फिशेस हो चाहे वो मैमल्स हो, सब के सब अपने अंडों की या अपने नवजात शिशुओं की रक्षा करते हुए दिखते हैं, विच इज नोन एज पेरेंटल केयर, और हियर इट इज रिटन एज मैटरनल केयर। मैमल्स में तो माताएं शिशु को स्तनपान कराती हैं मैमरी ग्लैंड्स के द्वारा, इसीलिए क्लास का नाम ही है मैमेलिया। तो ये विशेषता है। रिप्रोडक्शन केवल मेटिंग के बाद ही खत्म नहीं हो जाता, बल्कि ये आगे तक चलता रहता है, और ये इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है। मैटरनल केयर, पैटर्नल केयर, इट इज इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। Animal sexual behavior has very interesting components. किस प्रकार से ये सेक्सुअल बिहेवियर होता है? तो इसके लिए दो पार्टनर्स, मेल और फीमेल की आवश्यकता है। ये मेल और फीमेल किस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं? इट मे बी मोनोगैमस। मोनोगैमस मतलब एक ही पार्टनर, एक मेल का एक ही फीमेल पार्टनर होगा, एक फीमेल का एक ही मेल पार्टनर होगा। इससे हमारी ह्यूमन सोसाइटी तो बहुत अच्छे से वाकिफ है। एनिमल किंगडम में ये आश्चर्यजनक है, लेकिन होता है। आप आगे चल के देखेंगे कि बर्ड्स की प्रजातियां दे आर वेरी लॉयल टू देयर पार्टनर्स एंड इट इज मोनोगेमी। पॉलीगेमी, जहां एक से अधिक पार्टनर्स हो। पॉलीगाइनी, यदि एक मेल कई फीमेल पार्टनर्स रखता हो। पॉलीएंड्री, यदि एक फीमेल कई मेल पार्टनर्स रखती हो। और प्रोमिस्क्यूटी, इसमें मर्यादा नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कोई किसी के भी साथ कोई भी संबंध बना सकता है। तो एनिमल किंगडम में हम इसको ही कॉमन मान सकते हैं, और ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होती है। इस पिक्चर में आपको ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से एक सिंगल मेल एक सिंगल फीमेल के साथ मिलता है, तो ये मोनोगेमी है। एक सिंगल मेल कई फीमेल्स के साथ संबंध रखता है तो इट इज पॉलीगाइनी। मल्टीपल फीमेल्स अगर मल्टीपल मेल्स यदि सिंगल फीमेल के साथ मिलते हैं तो पॉलीएंड्री, और मल्टीपल मेल्स यदि मल्टीपल फीमेल्स के साथ मिलते हैं तो पॉलीगाइनो एंड्री। रिप्रोडक्टिवली मोटिवेटेड बिहेवियर, कोई भी बिहेवियर किसी मोटिवेशन से होता है। तो किस प्रकार से रिप्रोडक्शन के लिए मोटिवेशनल बिहेवियर होता है, जिसे आप कह रहे हैं RMB, रिप्रोडक्टिवली मोटिवेटेड बिहेवियर। इट इज यूजुअली टर्म्ड एज copulation or mating. This is the way of exchanging their genetic materials to form a zygote. It occurs during estrus or heat period, which enhances the chances of successful conception. Vertebrates में फीमेल्स में एक हीट पीरियड होता है जब फीमेल हार्मोन, मेजर हार्मोन ईस्ट्रोजन अपने पीक पर होता है। तो जब हार्मोन पीक पर पहुंचता है ईस्ट्रस या ईस्ट्रोजन, उसे तब कहते हैं ईस्ट्रस पीरियड या हीट पीरियड। इस समय फीमेल संकेत देती है मेल को कि शी इज रेडी फॉर द कंसेप्शन। आप समर में कोयल की कूक सुनते हैं, बरसात शुरू होती है तो मेंढकों का टर्राना सुनते हैं। दीज आर ऑल सिग्नल्स दैट दे आर रेडी फॉर द कंसेप्शन। इनमें नॉन प्राइमेट्स में ईस्ट्रस पीरियड होता है जिसे हीट पीरियड कहते हैं। इस समय ईस्ट्रोजन अपने पीक लेवल पर पहुंच जाता है, जिसके कारण ओवरी से ओव्यूलेशन होता है, और इस ओव्यूलेशन के कारण फीमेल चाहती है कि उसे एक मेल पार्टनर मिले जिससे उसकी संतति आगे बढ़े। तो हमारी ये बात बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है कि हर जीव की एक इनहेरेंट टेंडेंसी है कि उसकी प्रजाति आगे बढ़ती रहे। तो हर फीमेल में जब ओव्यूलेशन होगा तो वो ईस्ट्रोजन के पीक पर पहुंचने पर होगा, और ईस्ट्रोजन
का जब पीक होता है, ओव्यूलेशन होता है, ये स्थिति कहलाती है ईस्ट्रस या हीट पीरियड। और इस समय कॉप्यूलेशन जब होगा तो कंसेप्शन लगभग सक्सेसफुल होता है। ये नॉन प्राइमेट्स में देखने को मिलता है। प्राइमेट्स में all the time the male is always ready for the copulation, and female sometimes she is ready when ovulation has occurred. Otherwise primates में mating behavior बहुत common है. Competition occurs among the males. मेल्स क्या करते हैं, अपने टेरिटोरी में या अपने स्थान में दूसरे मेल को नहीं आने देते हैं, उसके लिए वो फाइट करते हैं, और जो विजेता होता है वही एक फीमेल से या कई फीमेल्स के साथ मेटिंग कर सकता है, जिससे उसके जीन्स उसकी आने वाली संतति में ट्रांसमिट हो सके। मेल तो स्वयं लड़के अपना स्थान अर्जित करता है, फीमेल को एक्वायर करता है, लेकिन फीमेल उसे सिलेक्ट करती है जो बहुत स्ट्रांग हो और अपनी रक्षा स्वयं कर सके। मोनोगेमी इन वर्टिब्रेट्स। एनिमल्स में भी मोनोगेमस पेयरिंग होती है, यानी एक मेल एक फीमेल के साथ और एक फीमेल एक मेल के साथ अपना जीवन यापन करना पसंद करती है। इसका बेहतरीन उदाहरण आपको मिलेगा बर्ड्स में। यहाँ ये लोग न केवल एक साथ रहते हैं, बल्कि जब इनके अंडों से बच्चे बाहर निकलते हैं, उसको पालने का कार्य भी मेल फीमेल दोनों मिलकर करते हैं। आपने अपने व्यक्तिगत अनुभवों में देखा होगा चिड़ी किस तरह से घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चा डकलिंग्स या कोई भी एवियन बच्चा बाहर निकलता है तो एक घोंसले में रहता है, दूसरा उड़ के जाता है भोजन लाने के लिए, और इस तरह से दोनों मिलके बच्चे को पालते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उसको वो उड़ना उड़ने के लिए प्रेरित करते हैं और बाहर छोड़ देते हैं। इन्हीं एव्स में आपको एक पैटर्न और मिलेगा कि जब ब्रीडिंग सीजन चेंज हो जाता है तो वो पार्टनर भी चेंज कर देते हैं, जैसे एम्परर पेंगुइन। तो आपको कई तरह के उदाहरण एनिमल किंगडम में देखने को मिलते हैं। सोशल एंड जेनेटिक मोनोगेमी। सोशल मोनोगेमी, इसका ऑलरिच रिचर्ड ने 2003 में एक परिभाषा दी थी। उन्होंने समझाया था कि मेल और फीमेल सोशली एक साथ रहने की व्यवस्था करते हैं, यानी उनका अगर घोंसला होगा या उन्होंने कोई नेस्ट बनाया होगा या उन्होंने रहने का कोई आवास स्थान चुना होगा, तो वहाँ पर मेल फीमेल दोनों एक साथ रहेंगे और रिप्रोडक्शन करेंगे, उनकी संतानें उत्पन्न होंगी। और ये काफ़ी रेयर घटना तो है, लेकिन ऐसा होता है एनिमल किंगडम में। प्राइमेट्स में विशेषकर ये एविडेंट है। करीब 90% एवियन स्पीशीज में भी आपको सोशल मोनोगेमी दिखती है। पिजन का उदाहरण अभी आपने देखा, ऐसी कई चिड़ियाएं आपको मिल जाएंगी। और केवल 3% मैमल्स ऐसे हैं जो सोशल मोनोगेमी में रहते हैं, जबकि 15% प्राइमेट्स सोशल मोनोगेमी दिखाते हैं। प्राइमेट्स में बेहतरीन उदाहरण मैं आपको देती हूँ होमो सैपियंस, यानी मनुष्य प्राइमेटा में ही आता है। ये अलग बात है कि उसको हम ज़ूलॉजी में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। गाहे बगाहे मनुष्य का एग्जाम्पल एनिमल बिहेवियर में या फिजियोलॉजी में या इकोलॉजी में हम ले ही लेते हैं। तो आपने ये देखा कि ये मोनोगेमी प्राइमेट्स में 15% प्राइमेट्स में मोनोगेमी इज वेरी कॉमन। इट हैज़ ऑल्सो बीन ऑब्जर्व्ड अमंग इंसेक्ट्स, फिश एंड रेप्टाइल्स। आश्चर्यजनक किंतु सत्य, होता है ऐसा। जेनेटिक मोनोगेमी, डीएनए एनालिसिस से या फिंगरप्रिंटिंग से पता चलता है कि एक फीमेल के जितनी संतानें पैदा हुई हैं वो एक ही मेल से पैदा हुई हैं अथवा अन्य मेल से पैदा हुई हैं। इससे पेरेंटेज का पता लगाया जा सकता है। पॉलीगाइनी इन एनिमल्स। पॉलीगाइनी, when one male mates with multiple females. In sociobiology,
and zoology, it is defined as a system in which male has a relationship with many more females, but the females are loyal to only single male. मनुष्यों में तो ये बात बहुत देखी गई है। एनिमल किंगडम में ये बहुत कॉमन है कि एक मेल्स की कई फीमेल्स के साथ रिलेशनशिप होती है, वो उनसे अपनी संतानें उत्पन्न करते हैं, लेकिन फीमेल एक ही मेल के प्रति लॉयल होती है। इसे पॉलीगाइनी कहते हैं। इफ द एक्टिव मेल इज किल्ड और ड्रिवन आउट, अ न्यू मेल achieves the right to mate and transmit its genes to new generation. ये भी एक बहुत ही रोचक तथ्य है। यदि मान लीजिए इस मुखिया की मृत्यु हो जाती है, जिसकी कई फीमेल्स के साथ रिलेशनशिप है, कई फीमेल्स के साथ उसकी प्रोजेनी उत्पन्न हुई है, इफ एट ऑल ही डाइज और ही इज किल्ड एक्सीडेंटली, और टेरिटोरी के झगड़े में अगर उसकी मृत्यु हुई है, किसी भी कारण से मृत्यु हो गई है, तो दूसरा मेल उस सत्ता को हथिया लेता है। यानी अब उसके स्थान पर एक दूसरा मेल आ गया है और अब आकर वो अपना महत्व किस प्रकार से स्थापित करेगा, क्योंकि अब वो इन फीमेल्स के साथ मेटिंग करेगा और उसके जीन्स ट्रांसमिट होंगे और उसकी संतानें उत्पन्न होंगी और वो नई जनरेशन को वो जन्म देता है। और इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ता है, वो करता है। कैसे? कॉम्पिटिटिव इन्फेंटिसाइड, यानी ये मेल अपने पूर्व फीमेल पार्टनर्स के से जो संतानें हैं, कहने का मतलब ये है इसने जो स्थान एक्वायर किया है उस कम्युनिटी में जितनी फीमेल्स के अगर कोई छोटे छोटे से बच्चे हैं जो पूर्व मेल से उत्पन्न हुए थे, तो वो उन्हें मार डालते हैं। एग्जाम्पल मिलेगा आपको लायन, हिप्पोपोटामस, कुछ मंकी। जैसे ही बच्चा पैदा हो रहा है प्रीवियस मेल से, वो उन्हें मार डालते हैं। वेरी बैड, बट इट हैपन्स। हेरसमेंट टू मिसकैरेज, घोड़े और बबून्स भी कुछ कम नहीं है। वो अपनी फीमेल को इतना हेरस करते हैं कि उनमें एबॉर्शन हो जाता है, अगर वो पहले मेल के द्वारा गर्भवती कर दी गई है तो। कुछ फेरोमोन्स के कारण भी स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीगाइनी. Polygynous mating structure are estimated to occur in up to 90% of mammalian species. कॉमन है ये मैमल्स में पॉलीगाइनी। एक मेल कई फीमेल्स के साथ संबंध रखता है। As polygyny is the most common form of polygamy among vertebrates, including humans to some extent, it has been studied far more extensively than polyandry or polygynandry. एनिमल किंगडम कहिए या सोशियोलॉजी में ह्यूमन सोसाइटी को देख लीजिए, कहीं भी पॉलीगाइनी इज़ वेरी कॉमन अकरेंस, जिसमें एक मेल के कई फीमेल्स के साथ संबंध होते हैं। इसीलिए इसमें विस्तृत अध्ययन भी इसका किया है। इसके कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। पॉलीएंड्री, इट अकर्स व्हेन फीमेल गेट्स एक्सक्लूसिव मेटिंग राइट्स विद मल्टीपल मेल्स। यदि एक फीमेल कई मेल्स के साथ रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है या मेटिंग करती है, तो इसे कहते हैं पॉलीएंड्री। एंगलर फिश इसका एक उदाहरण है। इसका विस्तृत वर्णन किया गया है और इसके भी मूल में एक ही उद्देश्य है, अपनी प्रोजेनी को सरवाइव करवाना, अपनी प्रोजेनी को नेचर में लाना और स्वस्थ, वायबल, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को आगे बढ़ाते रहना। अब देखिए इसमें किस तरह की घटना हो रही है। इसमें फीमेल काफ़ी बड़ी होती है और मेल काफ़ी छोटा होता है। तो ये डीप सी एंगलर फिशेस हैं और ये क्या करते हैं, फीमेल की स्किन को बाइट करते हैं और इस बाइटिंग से उनकी सलाइवा से एक एंजाइम निकलता है जो फीमेल के माउथ को और उसकी बॉडी के स्किन को डाइजेस्ट कर देता है और वो जाकर उसके बॉडी कैविटी में ब्लड वेसल लेवल पर जाकर उससे जुड़ जाता है। फीमेल के
ब्लड वेसल लेवल पर जाकर जुड़ जाता है। अब धीरे धीरे मेल के सारे ऑर्गन्स एट्रॉफी होने लगते हैं, यानी नष्ट होने लगते हैं। पहले उसका डाइजेस्टिव सिस्टम नष्ट होता है, फिर उसका ब्रेन, हार्ट, आँखें, यहाँ तक कि अब सारे ऑर्गन्स के डैमेज होने के बाद केवल गोनाड इज देयर। गोनाड मतलब, मेल गोनाड मतलब टेस्टिस, और टेस्टिस से स्पर्म्स निकलेंगे, क्योंकि टेस्टिस का काम ही है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनाना और स्पर्म रिलीज करना, बिकॉज स्पर्म इज मेल गेमेट विच ट्रांसमिट्स इट्स जेनेटिक मटीरियल टू फीमेल बाय फर्टिलाइजेशन। लेकिन ये स्पर्म्स भी तब निकलते हैं जब फीमेल के बॉडी से एग रिलीज होता है, और इसके कारण हॉर्मोन्स के रिस्पॉन्स से, एग रिलीज होने की वजह से जो हॉर्मोन्स निकल रहे हैं फीमेल की बॉडी में, उसके रिस्पॉन्स से स्पर्म्स रिलीज हुए और वो एग को फर्टिलाइज करते हैं। इट इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिएक्शन। स्टिमुलस क्या है? हार्मोन, फीमेल का हार्मोन। ये हार्मोन कब निकला? जब उससे एग रिलीज हुआ, और मेल ने क्या रिस्पॉन्स दिया? स्पर्म को रिलीज किया, और इस तरह से रिप्रोडक्शन इज कैरिड आउट। और जैसा हम जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है? अपनी संतति को आगे बढ़ाते रहने के लिए। The extreme sexual dimorphism ensures that when the female is ready to spawn, she has a male immediately available. A single anglerfish female can mate with many males in this manner. अब चूंकि अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाना हर जीव की इनहेरेंट टेंडेंसी है, इसी कारण फीमेल इस तरह से पॉलीएंड्री इसलिए करती है, अगर उसमें जैसे ही ओव्यूलेशन हो रहा है, उसमें जैसे ही हीट पीरियड आ रहा है, उसको तुरंत मेटिंग की आवश्यकता है, तो एंगलर फिश का मेल फीमेल में इस तरह से अपने आप को अंदर कर देता है, और केवल उसके गोनेड्स ही बचे रहते हैं। और इस क्रम में फीमेल कई मेल्स के साथ मेट करती है, इसीलिए इसे कहते हैं पॉलीएंड्री। पॉलीगाइनेंड्री। Polygynandry occurs when multiple males mate indiscriminately with multiple females. जब मेल्स कई फीमेल्स के साथ स्वच्छंद तरीके से मेटिंग करते हैं, यह है polygynandry. The number of males and females need not to be equal. And in vertebrate species studied so far, there are usually fewer males. इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि कौन मेल कितने फीमेल्स के साथ मेट कर रहा है। यहाँ ये देखा जा रहा है कि मेल्स फीमेल्स के मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, जैसे चिंपैंजी एंड bonobos. These species live in social group consisting of several males and several females. जब आप प्राइमेट्स का सोशल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे, उसमें आप देखेंगे चिंपैंजीज और बोनोबोस का एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनका एक संयुक्त परिवार होता है जिसमें कई मेल्स और फीमेल्स होते हैं, और ये मेल फीमेल्स के साथ कॉप्युलेट करती है, और फीमेल कॉप्युलेट्स विद मेनी मेल्स एंड वाइस वर्सा, यानी फीमेल अगर कई मेल्स के साथ कॉप्युलेट करती है तो मेल्स भी कई फीमेल्स के साथ कॉप्युलेट करते हैं। Polygamy. The term polygamy is an umbrella term used to refer generally a non-monogamous mating. Monogamous में single partner की बात होती है. Polygamy is multiple partners. As such, polygamous relationship can be polygynous, polyandrous or polygynandrous. Polygamy में एक फीमेल के कई मेल पार्टनर्स हो सकते हैं, एक मेल के कई फीमेल पार्टनर्स हो सकते हैं, या मेल और फीमेल दोनों के कई पार्टनर्स हो सकते हैं. In a small number of species, individuals can display either polygamous or monogamous behavior depending on environmental conditions. Environmental factor बहुत important role play करता है. कुछ species ऐसी हैं जो या तो polygamous होती हैं या monogamous होती हैं. Polygynandry. It occurs when multiple males mate indiscriminately with multiple
females. Two examples of systems in primates are promiscuous mating chimpanzees and bonobos. These species live in social group consisting of several males and several females. Common examples are forage fish such as herrings, which form huge mating shoals in shallow water, which become milky with sperm, and the bottom is draped with millions of fertilized eggs. इसे हम प्रीवियस स्लाइड में भी अध्ययन कर चुके हैं, तो मैं इसको नहीं बताती हूँ. मैं फोरेज फिश के बारे में आपको बताती हूँ. ये इसका एग्जाम्पल है हैरिंग फिश. ये क्या करती है, इनके कई मेल्स कई फीमेल्स आपस में मीटिंग करते हैं. एक फीमेल कई मेल्स के साथ मीट करती है, एक मेल कई फीमेल के साथ मीटिंग करते हैं, और ये अपने अंडे और स्पॉन्स पानी में छोड़ते हैं. शैलो वाटर में इनका स्पॉन वहाँ पर मिलता है, तो स्पर्म एग्स को फर्टिलाइज करते हैं, और इस प्रकार से कई लाखों की संख्या में फर्टिलाइज्ड एग्स आपको पानी में दिखते हैं, और ये पानी बिल्कुल मिल्की हो जाता है. दिस इज अनदर बिहेवियरल एस्पेक्ट. पॉलीगैमी. दिस टर्म इज यूज्ड टू रेफर अ नॉन मोनोगेमस मैटिंग. जैसे एज सच polygynous relationship can be polygynous, polyandrous या polygynandrous. बात कर चुके हैं इस बारे में हम लोग प्रीवियस स्लाइड में. मेंबर ऑफ सम सोसाइटी स्पीशीज डिस्प्ले आइदर पॉलीगेमस और मोनोगेमस बिहेवियर डिपेंडिंग ऑन एनवायरमेंटल कंडीशंस. जैसे एपिका, ये सोशल वेस्प इंसेक्ट्स में भी आपको इस तरह का यूनिक बिहेवियर देखने को मिलता है. वो पॉलीगेमस भी हो सकते हैं, मोनोगेमस भी हो सकते हैं. मोनोगेमी इज यूनिक, पॉलीगेमस तो कॉमन है. सम स्पीशीज एग्जिबिट पॉलीगाइनी एंड पॉलीएंड्री इन बोथ सेक्सेस. Polygamy in both sexes has been observed in reflower beetle it is spelling mistake, please read it as the flower beetle. ट्राइबोलियम में इस प्रकार का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है. Polygamy is also seen in many lepidopterans species including true armyworm moth. इंसेक्ट्स का उदाहरण दिया जा रहा है जिसमें पॉलीगैमी, पॉलीगाइनेंड्री इत्यादि देखने को मिलता है, जिसमें बीटल, ट्राइबोलियम, आप ट्राइबोलियम से वाकिफ हैं, घुन जिसे कहते हैं, ट्राइबोलियम्स, फ्लोर बीटल यानी घुन, आटे के साथ घुन पिसता है, कहावत है ना वो. एंड मैं फिर से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ इसे द पढ़ें. इट इज़ अ स्पेलिंग मिस्टेक which is regretted. Polygamy is also seen in Lepidopteran species. Moths में देखने को मिलता है. Components of reproductive behavior in both the sexes it includes, यानी मेल फीमेल दोनों में ये व्यवहार देखने को मिलता है. इस व्यवहार के कुछ components हैं जिसके द्वारा reproductive behavior is brought about. It is made successful. Actually, reproduction is made successful by some behavioral incidents in animals. ये behavioral incidents हैं pre-copulatory, copulatory and post-copulatory. हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि pre-copulatory में courtship आता है, copulatory में प्रजनन आता है, और post-copulatory behavior में प्रजनन के बाद शिशु जन्म और शिशु की केयर आती है. तो मैटरनल बिहेवियर में क्या आएगा? प्रीपार्च्यूरिएंट, पार्च्यूरिएंट एंड पोस्ट पार्च्यूरिएंट. एक फीमेल किस प्रकार अपने आप को शिशु को जन्म देने के लिए या अंडा देने के पहले तैयार होती है. ओविपैरिटी में अंडे दिए जाएंगे और विविपैरिटी में बच्चे को जन्म दिया जाएगा. तो किस प्रकार एक फीमेल अपने आप को कॉप्यूलेशन के लिए, कॉप्यूलेशन के बाद जो उसने गर्भ धारण किया है, कंसेप्शन किया है या कंसीव किया है, उसमें वो किस प्रकार से अपने आप को तैयार कर रही है, किस प्रकार बर्थ के समय अपने आप को उसने प्रेजेंट किया है, और जन्म के बाद किस प्रकार से वो
केयर कर रही है, चाइल्ड केयर कर रही है, पेरेंटल केयर में कैसे इन्वॉल्व है, ये हैं रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के कुछ महत्वपूर्ण घटक। प्री कॉपुलेटरी एक्टिविटीज में क्या होता है, मैंने आपको बताया कोर्टशिप, बट दिस कोर्टशिप इज ब्रॉट अबाउट बाय सेवरल इंसिडेंट्स। ये इंसिडेंट्स कैसे हो सकते हैं? कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। तो एनिमल किंगडम में दिस कम्युनिकेशन इज़ वेरी कॉमन और इट इज़ वेरी एविडेंट। ये केमिकल हो सकता है, केमिकल कम्युनिकेशन। अब एनिमल किंगडम में तो कोई बात करता नहीं है, लेकिन अपनी बातों को समझाने में वो बहुत सक्षम है और उनका जीवन बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है बिना स्पीच के भी। और रिप्रोडक्शन जो सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है जीवित रहने के लिए या जीवन को आगे बढ़ाए रखने के लिए, जो सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है उसके लिए कोर्टशिप देखिए कैसे हो रही है, कम्युनिकेट कैसे करते हैं ये बेजुबान जीव। केमिकल सिग्नल छोड़ते हैं, उनमें एक है फेरोमोन। ये गस्टेटरी या केमिकल हो सकता है, जैसे फेरोमोन्स का डिटेक्शन, टेक्टाइल यानी टच के द्वारा वो एहसास कराते हैं कि दे आर रेडी फॉर द कंसेप्शन। ऑडिटरी सिग्नल्स जैसे कोयल की कूक, और कई जीव बहुत वोकल हो जाते हैं जैसे मेंढक की टर। कोर्टशिप के दौरान ये बहुत कॉमन है ऑडिटरी सिग्नल देना। और विजुअल सिग्नल, मोर की डांसिंग एनिमल किंगडम में बहुत फेमस है। ये हमारे जीवन में कई कहावतें लेकर भी आई है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो ये सब कम्युनिकेशन के प्रकार हैं जिसमें एनिमल किंगडम में ये बेजुबान जीव अपने आप को रिप्रोडक्शन के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। कोर्टशिप इन एनिमल्स, ये मैंने कुछ चित्र आपके लिए संग्रह किए हैं थैंक्स टू द सोर्सेस। देखिए एक हिरण है, किस तरह से शी और ही इज रेडी। ही, ये इसके हॉर्न्स, ब्यूटीफुल हॉर्न्स देख के समझ में आ रहा है इट इज अ मेल। ही इज कॉलिंग इट्स मेट। अब भी मैंने आपको कहा जंगल में मोर नाचा किसने देखा, देखिए हम सब देख रहे हैं। विजुअल कम्युनिकेशन, बर्ड्स इस तरह से डांसिंग सिग्नल देते हैं अपनी मेट को। सक्लिंग बिहेवियर इन डियर, रिप्रोडक्शन के बाद यानी शिशु जन्म के उपरांत मैमल्स में शिशु को स्तनपान कराया जाता है। ये माता हिरण अपने शिशु हिरण को पालने का प्रयत्न कर रही है, अपना दूध पिला रही है, उसका भरण पोषण कर रही है जब तक कि वो स्वयं अपना भोजन करने में सक्षम ना हो। टेरिटोरियलिटी, इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी। तो टेरिटोरियल इज अ टाइप ऑफ इंटर स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक competition among the individual in a population for a space and complete dominance. मेल जिस इलाके में रहता है वहाँ अपना संपूर्ण वर्चस्व चाहता है, उस वर्चस्व के लिए उसे लड़ाई लड़नी पड़ती है। इस लड़ाई में एक मेल सक्सेसफुल होता है, बाकी को वो अपने एरिया से खदेड़ देता है। चाहे रेप्टाइल्स में सांप हो, क्रोकोडाइल हो, छिपकलियाँ हो, या मैमल्स में डॉग्स हो, कैट्स हो, कोई भी हो, इवन शेर अपने क्षेत्र में किसी को आने नहीं देना चाहते हैं। एंड दिस इज द कंप्लीट डोमिनेंस। दिस वेल डिफाइंड बिहेवियर इज एग्जिबिटेड थ्रू सॉन्ग्स एंड कॉल्स, इंटिमिडेशन बिहेवियर, अटैक एंड चेज एंड मार्किंग विद सेंस। इसके लिए मेल कई तरह के प्रयास करता है। पहले वो जिस इलाके में है वहाँ पर वो कम्युनिकेट करेगा कि ही इज़ द किंग ऑफ दिस एरिया। इसके लिए वो कुछ सॉन्ग्स करेगा, चाहे बर्ड्स में हो या किसी तरह की आवाज़ें निकालेगा, और बहुत हुआ, नाराज़ हुआ तो वो अटैक कर देगा। अगर मान लीजिए कि कोई नहीं माना, उसके एरिया में वो इंट्रूड कर रहा है कोई दूसरा मेल, तो वो उसके ऊपर अटैक करेगा, उसका पीछा करेगा। और कई बार ये क्या करते हैं, अपने एरिया को
फिरोमोन्स के द्वारा, उनके शरीर से निकलने वाले कुछ केमिकल्स के द्वारा मार्क कर देते हैं। जैसे यूरिन मार्क भी छोड़ दिया जाता है उस इलाके में, तो दूसरे जीव को, मेल को पता रहता है इस इलाके में नहीं जाना है। ग्रे वुल्फ, टाइगर, डॉग्स, ये सब कार्निवोर्स और बहुत हिंसक बड़े जीव हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। से द टेरिटोरियलिटी, ओ माय गॉड, लैंड, ग्रे वुल्फ लड़ाई भी कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। So it was my effort to make you understand about reproductive behavior. इसके लिए एक बहुत अच्छी बुक है जो आजकल शायद मिल नहीं रही है, एनिमल बिहेवियर बाय डीथर स्टीलर। इसमें रिप्रोडक्टिव बिहेवियर और सोशल ऑर्गेनाइजेशन बेहतरीन दिया हुआ है। आई थिंक अगर वो नहीं मिल रही है तो ये सब किताबें भी बहुत अच्छी हैं। डॉक्टर मैंने बताया है अरुमगम और नटराजन, डॉक्टर रीना माथुर, और ऑफ कोर्स आज इंटरनेट के ज़माने में हमें बहुत सारा मैटर गूगल सर्च में मिल जाता है, विकिपीडिया से हमने फिगर लिए हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।